जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एचसीएस मेन सीरीज। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंड मैं आज आपके सामने बिल लेकर आया हूं, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था इस साल बिकॉज इस पर कुछ अमेंडमेंट करे, बिकॉज अभी तक ये लड़ाई होती आ रही थी कि दिल्ली में गवर्नमेंट मींस चीफ मिनिस्टर और अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। फाइनली एमएचए ने यहां पर एक नोटिफिकेशन निकाली, एक बिल लेकर आए एंड इस जितने भी इस कंफ्यूजन को यहां पर बिल्कुल क्लियर एंड कट कर दिया। एंड यही लड़ाई जब से सिंस द केजरीवाल हैज कम इनटू पावर, मिस्टर के अरविंद केजरीवाल, तब से लड़ाई लगातार चल रही है। तो फाइनली इसको यहां पर रिजॉल्व कर दिया गया। ऑल्दो यहां पर इस डिसीजन और इस बिल से मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैप्पी नहीं थे, बट फाइनली इसके प्रोविजंस आ गए हैं एंड ये पास हो गए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको ये बता देता हूं कि आउट ऑफ 28 दैट वी हैव 28 states and 8 UTs, and out of 8 UTs 3 UTs are having special status, that is Delhi, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है इसमें आफ्टर 5 अगस्त 2019, दैट इज after revoking the special provisions of Article 370 given to the Jammu and Kashmir, and now soon after the formation of Delimitation Commission, the seats will increase to 114 in Jammu Kashmir, and Jammu Kashmir soon will get a title of statehood. So these three UTs are having the system of legislative assemblies with the chief ministers, with the help of with the chief minister and the lieutenant governor, and there are some UTs which have the admin status, and there are some UTs which they have a lieutenant governor. Now here CM is also with the council of minister as in the statehood, but the important part is this, that Delhi is not the complete state. That means Delhi has a partial statehood status. Partial statehood का मतलब क्या है? Like under the 7th schedule we have a 3 types of list. We have a union list, we have a state list, we have a concurrent list. Under the union list, union government can legislate. Under the state list, state can legislate. But here the Delhi is not a full state. Still, Delhi government has a power to legislate over the state list as well as the concurrent list. But under the state list, 3 items are excluded from the administration of Delhi government, that is police, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। इन 3 चीजों के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। एंड इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के आइटम पर लॉ बना सकती है। तो ये लड़ाई जब से मिस्टर केजरीवाल आए हैं तब से स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने कई बार डिमांड भी करी कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिया जाए या फिर दिल्ली पुलिस को हमारे अंडर लाया जाए, but it's still under the central government. It is same like in the USA, same like in the Australia, because ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एक स्टेट की पुलिस करेगी। That will hamper the position of sovereignty of the parliament. इसीलिए अभी तक जैसे कैनबरा में रखा हुआ है यहाँ पर, या उसके बाद जैसे यूएसए में रखा हुआ है कि जो सेंटर होगी, कैपिटल होगी, उसके पुलिस यहाँ पर एमएचए, दैट इज एट द लेवल ऑफ द सेंटर लेवल, नॉट अंडर द स्टेट लेवल। सो what is this bill is all about? This act actually gives the power to the lieutenant governor of the national capital territory of Delhi and diminish the elected government's power. मतलब कि अब दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। इससे पहले क्या हो रहा था कि उन 3 मैटर्स के अलावा कुछ भी चीज हो रही थी तो वो चीफ मिनिस्टर कर रहा था, बट यहां पर अब हर मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर की कॉन्फ्रेंस के बिना दिल्ली में नहीं होगा। This act also seeks to bring in some clarity on certain subjects in the Government of National Capital Territory Act 1991. This act makes amendment to the Government of NCT 1991 and gives more power to the LG Lieutenant Governor in some respect while ensuring the Delhi Legislative Assembly's accountability. So ये act basically यहाँ पर आया है जिसने कह दिया, जो 2018 से यहां पर लड़ाई चल रही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब है क्या, तो फाइनली यहां पर क्लियर कर दिया एमएचए ने, दैट मींस दिल्ली गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। 10. As per the Act's object in reason, it is aimed at ending the absence of clarity on what matters or proposals are needed to be submitted to the LG before orders could be issued. कौन से orders हैं, कौन से matters हैं जो LG के आगे लाए जाएंगे। It also aims to further define the responsibilities of Lieutenant Governor and the elected government in the Delhi. We have the chief ministers,
with the help of council of minister we have a lieutenant governor and अभी तक लड़ाई यही हो रही थी कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है। यहां पर सीएम गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेट कर सकती है एक्सेप्ट द पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड द लैंड। ओके, नाउ What was the need for this amendment? इसकी जरूरत क्यों थी? Because 2018 से कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही थी कि भाई किसकी चलेगी वहां पर, ठीक है। जो भी मैटर आता था आफ्टर CAA भी कुछ मैटर्स आए तो जिसमें फेसबुक वाला कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई कि भाई चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके पास ज्यादा पावर है, ये अभी तक वहां पर लड़ाई चल रही थी। तो फाइनली उस वो लड़ाई की क्लैरिटी आ गई। नाउ फॉर द स्ट्रक्चरल क्लैरिटी, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी मतलब कि पता तो हो कि सरकार का मतलब क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टेटमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड रीजंस ऑफ द बिल स्टेटेड दैट द सेक्शन 44 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड देयर इज नो स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेट सेक्शन and there is no clarity to what proposal matters are required to be submitted to lieutenant governor before issuing order thereon. So section 44 says that all the executive actions of LG whether taken on the advice of minister otherwise shall be expressed to be the name of the LG. तो सेक्शन 44 में कहा गया कि कोई भी एक्शन जो है चीफ मिनिस्टर के या सरकार के वो किसके नाम पर होंगे, ऑन द नेम्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके तो सबसे पहले आपको पता होगा कि दिल्ली स्टार्टिंग में तो पहले स्टेटहुड ही था, उसके बाद यहां पर बालकृष्ण कमेटी, उसके बाद यहां पर म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट कर दी गई थी, म्यूनिसिपल काउंसिल। उसके बाद 1987 में पहली बार डिमांड उठी गई यहां पर फॉर द दिल्ली स्टेटहुड। नाउ इन 2018 अंडर द दीपक मिश्रा's जजमेंट, यहां पर एक जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि LG's कंकरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन अदर इश्यूज अदर देन दिस, कि भाई पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, इन तीनों चीजों पे तो ठीक है सेंटर के हाथ में, इन तीन चीजों के अलावा LG की कंकरेंस की जरूरत नहीं है। यहां पर दीपक मिश्रा जी ने कहा एंड यहां पर कहा कि अगर आप यहां पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बना के रखना चाहते हैं, LG की जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको ये मेंटेन रखना पड़ेगा। It had also added that the Council of Ministers will however have to be communicated to the LG and LG was bound. LG was bound and साथ साथ उन्होंने सरकार को भी कहा कि भाई आपको भी ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई इन तीन चीजों के अलावा ही आप लॉ बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप ये कहोगे कि इन तीनों चीजों पे भी हम लॉ बनाएंगे और हमारी चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। साथ साथ दीपक मिश्रा जी ने उनको भी कहा और LG को भी कहा। इन्होंने कहा कि जो यहां पे स्टेटस है LG का, इट इज नॉट द स्टेटस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ फुल स्टेट। जैसे फुल स्टेट में गवर्नर के पास पावर है वैसे दिल्ली में नहीं है। रेदर ही रिमेन्स एन एडमिनिस्ट्रेटर इन अ लिमिटेड सेंस वर्किंग विद द डेजिग्नेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो आपके पास फुल स्टेटहुड वाली powers नहीं है। It had also pointed that the government must keep in mind that Delhi is not a state. सरकार को भी लॉ बनाते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से यहां पर लॉ लेकर आना है। Now, what are the provisions of this new act? First point, this act provides that such rules of assembly must be consistent with the rule of procedure and conduct of the business of the Lok Sabha. कि जो असेंबली के रूल्स है ना अभी तक वो they must be inconsistent with the rules of procedure and the business of Lok Sabha, इनके बराबर होने चाहिए। Second point, here the government means mention the word government which is mentioned under this, it means the LG. It defines government as the LG. That means अब कोई भी मैटर होगा LG को आपको कम्युनिकेट करना होगा other than these three matters, police, public order and the land. Now this provide discretionary powers to the LG even in the matters where the assembly is empowered to make laws. यहीं पर गेम खत्म हो गई। यहां पर एक पॉइंट कहा गया कि एनी मैटर विच हैज एन इंसिडेंटल, द वर्ड यूज इज इंसिडेंटल, which incidentally covering this police, public order, land needs the concurrence of the lieutenant governor. अब भाई कोई भी चीज हुई, कल को अस्पताल बनाने लगे केजरीवाल जी, कोई स्टेडियम बनाने लगे, लैंड चाहिए होगा, पब्लिक ऑर्डर, ये सब बीच में आएगा। तो अब ये कहा गया कि भाई इन सब चीजों के लिए भी यहां पर LG से आपको पूछना होगा, LG की कंकरेंस जरूरत होगी, अदरवाइज आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। क्लियर वन? सो ये एक तरीके से इन तीनों चीजों के अलावा भी जो भी चीजें थी वो सब छीन ली गई हैं सरकार से। Here the government means the LG. Now an additional clause added to the section 44 which makes it mandatory for the government to obtain opinion of the LG on all the matters. Here on all the matters,
That means other than the police, public order and the land, before an executive action can be taken, ensuring accountability. अब आपको पूछना पड़ेगा. This means the state government or the cabinet would need to seek LG opinion before implementing any decision. कल को वो कहें हम पानी फ्री दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं कोविड के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहे हैं, आपको हर चीज के लिए यहां पर LG से पूछना होगा. Done. Other than these three things also, this amendment also says that the assembly shall not make any rules to enable itself, अपने आप को, or committee to consider the matters of day-to-day administration of the capital or conduct inquiry in relation to the administrative decisions. अब ये administrative decisions, अब आपको पता है जब CAA के लिए वहां पे दंगे हुए थे तो कुछ के खिलाफ FIR कुछ को फेसबुक से उठाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि यहां पर उन्होंने सेंटर के पास गए, MHA के पास गए वो, ठीक है, कि उनकी कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है, वो इंस्टिगेट करा गया, कुछ और करा गया, जो भी केसेस थे, तो वहां पर एक मोटा मोटा ये केस आया कि इन तीनों चीजों के अलावा भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ सरकार कर रही है, तो वहां पर LG का ओपिनियन लेना, उनके लिए ओपिनियन नहीं, LG को बताना, और यहां पर LG से बिना पूछे वो एक्शन नहीं ले सकते हैं. पहले था कि उन तीनों चीजों के अलावा ले सकते थे, बट नाउ द गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द सिक्स्थ पॉइंट, the act requires the LD to also reserve those bills for the president which incidentally, this word incidentally, cover any of the matter outside the preview of assembly. भाई अभी तक था पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, इन तीनों चीजों के अलावा सरकार लॉ बना रही थी, बट अब क्या कह रहे हैं वो कि इन तीनों चीजों के अलावा which has a incidentally cover, incidentally मतलब हॉस्पिटल बना रहे हैं, लैंड की जरूरत है, कल को स्टेडियम बना रहे हैं, उसके लिए भाई अगले साल वर्ल्ड कप करवाना है, स्टेडियम बनवाना है, आपको क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और यहां पर लैंड, इसमें कोई इंसिडेंटली अगर इन चीजों को कवर भी कर रहा होगा तो भी सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर से बिना पूछे नहीं कर सकते हैं. एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यहां पर पावर है, दे कैन रिजर्व दोज बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट. नाउ it amended section 21, 24, 33, 44 of 1991 act which states that the government of means lieutenant governor of the Delhi. So these are the basic points कि भाई सरकार का मतलब यहां पर क्या हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो आपके पास 7 पॉइंट्स हैं इस पूरे बिल के एज इट इज सरकार की साइट के हिसाब से, प्लस इसकी 2018 में दीपक मिश्रा एडेड बाय द 5 बेंच जजेस, उस टाइम पे चैलेंज करा गया. उस टाइम पे कहा गया कि गवर्नमेंट डज नॉट मीन्स LG, it means the chief minister. LG is just a position here, and apart from the police, public order, land, CM can legislate and LG is bound. but उसको overturned कर दिया गया in this NCT bill 2021 and कहा गया government means LG, and other than the matters specified under the state list, that is the public order, police and the land, still those matters which has incidentally covering these three on matters which has incidentally covering any matters outside the preview of assembly requires the concurrence of LG. Here everything here means LG. So by making it mandatory for the elected government to route all its files through the LG, the amendments will essentially take away the government's autonomy, सरकार की autonomy ले लेंगे, and dream for full statehood of the state. Quite obvious है, full statehood कभी होगा भी नहीं. And this amendment will have far-reaching implication beyond just a tussle between political parties. ये tussle already चल रही थी, and ये tussle अभी और ज़्यादा हो जाएगी. So ये बिल बिल्कुल न्यूज़ में लगातार है, तो ये कंट्रोवर्सी भी रही थोड़े दिन तक, बट फाइनली ये पास कर दिया गया. तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज लास्ट टाइम के मेंस में उन्होंने डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा था, उस टाइम पे पास हुआ था. तो इस बार जो भी यहां पर पास चीजें बिल्स पास हुए हैं या फिर जो न्यू स्कीम्स आई हैं वो हम सारी कवर कर लेंगे. सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेज सेशन एंड विल कम अप विद अनदर क्वेश्चन सून. टिल दैट टेक केयर. जय हिंद टू ऑल.